Good afternoon class. Today we will discuss about the electromagnetic radiations. Students, basically this topic is very important because from here you will know that about the particle nature of waves, okay? And basically here in this we will discuss about how we can describe the particle nature of electromagnetic radiation. But before getting through the particle nature of electromagnetic radiation, we will see few terms and characteristics of electromagnetic radiation. We will see terms like wavelength, like frequency, like amplitude. Okay, so let us begin. Students, the very most common form of radiation is light. You all know very well fact with this fact that the most common form of radiation is light. आप लोग इस फैक्ट से पूरी तरह से सहमत हैं कि जो रेडिएशन होती हैं ओके सबकी उसकी कॉमन जो फॉर्म होती है वो लाइट होती है. एंड लाइट वॉज कंसिडर्ड टू हैव अ वेव नेचर. और लाइट को ऐसा कंसिडर किया गया कि उसमें एक वेव नेचर होता है. वाई इट इज़ सो? बिकॉज लाइक वेव इट शोज़ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. जैसे हम वेव्स को देखते हैं तो वेव्स में इंटरफेरेंस आती है, डिफ्रैक्शन आती है. वैसे ही लाइट की भी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है. स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेल नोन विद द फैक्ट अबाउट द टर्म इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन बिकॉज यू हैव स्टडीड दिस इन फिजिक्स ऑल्सो. एंड स्टूडेंट्स, लाइट्स वॉज एक्चुअली कंसिडर्ड एज ट्रांसफर वेव. और लाइट को हम लोग अगर उसके बेसिक डेफिनेशन में जाते हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है. You are studying this from the very sixth class that light is a form of energy, or basically it is a wave, and it is basically the transverse wave. Basically later some of its properties were found to be different. Okay, being as transfer wave, or you can say the electromagnetic wave, there is some different properties also. So light was a new kind of wave known as electromagnetic wave. Okay, having some other properties, it was assumed as a electromagnetic wave. So for this students, we must have know that what is electromagnetic wave. Okay students, if you will consider about the wave, then you know that it just moves on having crust and trough formation is taking place. You can see here in the diagram. Okay, a wave is propagating, and in this propagation there is formation of crest and trough. But when we are saying that the light is having some other properties, okay, that is its properties were found to be somewhat different from the transfer wave. Because of that it is known as electromagnetic wave. So that's why it is very necessary to know about what are EM wave. ठीक है, इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि EM वेव होती क्या है. सो लेट अस कंसिडर टू द टॉपिक दैट इज़ व्हाट इज़ EM वेव. सो स्टूडेंट्स, EM वेव, अगर हम EM वेव को कंसिडर करते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं. द वन इज़ द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट. एक कंपोनेंट हमें मिलता है जो कि होता है मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, एंड द अदर वन इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट. ओके, सो अगर आप इसको देखेंगे ग्राफ को, अगर आप इस प्रोपगेशन को देख रहे हैं वेव की, तो आप देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है वो प्रोपगेट कर रहा है वाई एक्सिस पे. ओके, and the electric field component is propagating along. You can see here in the diagram, you can see the propagation in the z axis. So what you have to conclude from this graph, or what we can see the general characteristic of EM wave is that basically they are having both the component, okay, that is the electric field, and basically they are oscillating in a direction which is perpendicular to each other. So you can see here, student, if you will look at this diagram, you can see that this magnetic field and electric field are propagating in perpendicular direction to each other. Okay, they are perpendicular to each other. One more property which you can take away from here is that electromagnetic wave can move in vacuum too, as they do not require a medium. हम लोग आपको ये प्रॉपर्टी हमेशा अपने कंसिडर करनी है कि EM वेव्स ऐसी वेव्स हैं, दे कैन प्रोपोगेट इन वैक्यूम ऑल्सो. इन्हें कोई मीडियम नहीं चाहिए, ये वैक्यूम में भी प्रोपोगेट कर सकती हैं. ओके, एट जनरली वेव्स रिक्वायर मीडियम, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डजेंट रिक्वायर एनी मीडियम. दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो. नाउ स्टूडेंट, लेट अस कम to the characteristics of EM wave. So from here we will know about new terms like frequency, like wavelength, like amplitude.
तो यहाँ से हम कुछ नए टर्म्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी। सो स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन विद द वेरी फर्स्ट, दैट इज़ एम्पलीट्यूड। अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें स्टूडेंट्स, सो डिफाइनिंग एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड को डिफाइन करें, सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन इज़ एम्पलीट्यूड। ओके, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है वेव की उसकी नॉर्मल पोजीशन से, उसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट वेवलेंथ, अगर हम वेवलेंथ की बात करें, सो वी कैन डिफाइन वेवलेंथ एज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट। तो वेवलेंथ क्या होती है, जो दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट होती हैं उनके बीच की क्या होती है, डिस्टेंस होती है। ओके, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड वेवलेंथ। और अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट फ्रिक्वेंसी, देन वी कैन डिफाइन फ्रिक्वेंसी एज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन एनी पॉइंट अंडरगो पर सेकेंड। ओके, वो नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, जो किसी पॉइंट से अंडरगो हो रहा है पर सेकेंड, इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। एंड बेसिकली स्टूडेंट्स, फॉर फ्रिक्वेंसी द यूनिट इज़ गिवन बाय हर्ट्ज़। ओके, फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज़ होती है, हम इसे ऐसे लिखते हैं, हर्ट्ज़। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं तो लेट अस ड्रॉ क्लियरली एंड अंडरस्टूड दिस। ओके स्टूडेंट्स, हमने बोला कि अगर हम वेवलेंथ की ही बात करें कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट, दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, जब भी वेव्स प्रोपगेट कर रही हैं, यू कैन सी हियर a wave is propagating. Okay, so here it is forming crest, here it is forming trough. इधर क्या बन रहा है, ट्रफ का फॉर्मेशन हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, क्रेस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। अब अगर हम डिफाइन करते हैं, अगर हम वेवलेंथ लें, कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ के बारे में बात करें, तो वेवलेंथ को हम कैसे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ये जो दोनों क्रस्ट हैं, ओके, इन दोनों क्रस्ट के बीच की डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम सिंबलाइज कैसे करते हैं, लैम्डा। ओके, सो दिस डिस्टेंस विल बी वेवलेंथ विच इज़ डिमॉन्स्ट्रेट बाय अ सिंबल दैट इज़ लैम्डा। ये किसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, वेवलेंथ को। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें, सो एम्पलीट्यूड क्या होता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। ठीक है, नॉर्मल पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेस जो कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, यू कैन अगेन सी इन दिस डायग्राम। अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये नॉर्मल पोजीशन थी। अगर हम इसको ओरिजिन इसका मानते हैं, इसकी एक्सिस मान रहे हैं, ठीक है, इफ़ दिस इज़ द एक्सिस, तो यहाँ से वेव्स यहाँ तक आई, ओके, फिर यहाँ से वेव ट्रफ का फॉर्मेशन कर रही हैं। तो ये जो बीच का, ठीक है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ओके, ये क्या हो गई, एम्पलीट्यूड हो गई। वेवलेंथ क्या हो गई, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट। वेवलेंथ क्या हो गई, जो दो क्रेस्ट हैं उनके बीच की डिफरेंस हो गई। स्टूडेंट्स, फॉर योर ईज आई हैव ड्रॉन हियर ऑल्सो, यू कैन सी, बिकॉज आई कैन नॉट डिमॉन्स्ट्रेट इट इन दिस इज़ वेरी स्मॉलर साइज हियर। दिस इज़ एम्पलीट्यूड and this is what, this is wavelength. Okay, so students, this is about our today's lecture. Basically what we have studied here is that we have firstly discussed about the basic electromagnetic radiation, where we have seen that the most common form of radiation is light। जहाँ पे हमने देखा कि अगर हम रेडिएशन की सबसे कॉमन फॉर्म की बात करें तो वो क्या होती है, लाइट होती है। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड दैट लाइट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफर वेव, but along with the transfer wave, there is some other properties also. So for this it was considered as a electromagnetic wave, and in the electromagnetic waves properties we have seen that they are basically the two components, that is the magnetic field and the electric field. और students, हमने ये भी देखा
कि अगर हम EM वेव्स की बात करें तो इसमें ये कंपोज्ड होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, इन दोनों से ये कंपोज होती हैं। और इनका जो ऑसिलेशन होता है, अगर हम इनके ऑसिलेशन की बात करें तो इनका ऑसिलेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती हैं। ये इनकी अगर एक कह सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी है। देन वी हैव स्टडीड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन मूव इन वैक्यूम टू, हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में भी मूव कर सकती है। देन स्टूडेंट्स वी अंडर इट्स कैरेक्टरिस्टिक वी हैव सीन अबाउट द टर्म्स like amplitude, like wavelength and like frequency. So thank you class.